Hello everyone. Greetings from JT Arts, Science and Commerce College for Women. I, Zahra Batul Ali Raza, Assistant Professor, Department of Botany, heartily welcome you all. Today, our today's lecture is about fungi from FYBSC Semester 1, Paper 1, Credit 2nd. We all have seen fungi in our daily life, but we don't know that is the fungi. मीन्स उसका नाम पंजाय है, उसे पंजाय कहते हैं. इफ़ वी लेफ्ट दी रोटी और ब्रेड इन मॉइस्चर देन some cottony growths are seen. That is nothing but fungi. And if we saw the rotten fruits, the rotten part is nothing but the growth of fungi, shows the growth of fungi. So let us start the lecture. In this lecture, we will discuss first the introduction and the general characters. These are the content of our today's lecture. So, let us start the introduction of the fungi. Fungi is the plural form of word fungus that is derived from the Latin word fungar, जिसका मतलब है to flourish, मतलब फलना फूलना. एंड इन एंशियंट टाइम जो मशरूम्स होते थे उन्हें पंजाय कहा जाता था. मतलब मशरूम्स को ही पंजाय माना जाता था और किसी चीज़ को नहीं. तो और ग्रीक में मशरूम को माइक्स कहते हैं. तो इसी तरह से जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी, क्योंकि ग्रीक में माइक्स का मतलब फंजाई. And we all know that logos means to study. And the person, the scientist who study the fungi known as mycologist. There are near about 5100 genera and 250,000 species of fungi. And fungi are cosmopolitan that can be found everywhere. जहाँ भी लाइफ पॉसिबल हो fungi वहाँ ग्रो कर सकती है. Now, general information about the fungi. First of all, P.A. Micheli. He is an Italian mycologist known as father of mycology. He wrote the Nova Plantarum genera, that is major step in knowledge of fungi. He was first to point out that fungi have reproductive bodies or spores. And he observed that when spores were placed on slices of watermelon, कुछ स्पोर्स को कुछ फंगल स्पोर्स को इन्होंने वाटरमेलन के स्लाइस के ऊपर रखा. देन उसके बाद जो ग्रोथ, जो लाइफ सेल्स जो ग्रो हुए तो वो क्या थे, वो उसी स्पोर के ही फंजाई थे जो जो इस पर रखा गया था. Then he noted that fungi did not arise from spontaneous generation, that arises from the spores. Then Anton de Barry, father of modern mycology. He is German mycologist known for demonstrating sexual life cycle of fungi, study of plant diseases, coining the term symbiosis. एंटोन डी बैरी ने ही कॉइन किया था कौन सी टर्म सिम्बायोसिस को. देन सर एडविन जॉन बटलर, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी. ये एक आयरिश माइकोलॉजिस्ट थे. ही वॉज एन आयरिश प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट. ड्यूरिंग हिज 20 years in India, he began large scale surveys on fungi and plant pathology. He published the book Landmark, Fungi and Diseases in Plants. Now discuss the definition of fungi. Fungi are achlorophyllous, thalloid, heterotrophic eukaryotic organism whose cell wall is made up of chitin, which reproduces by asexual and sexual spores. Fungi are achlorophyllous, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट. एंड जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा
और जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो दैट कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ। एंड उसकी बॉडी जो होती है वह थैलॉइड होती है। मतलब हम ये फिगर में देख रहे हैं कि उसकी बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा लीव्स है। या ये भी कह सकते हैं कि उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होती हैं, उसे थैलस बॉडी कहते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। एंड इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों होता है, बट दोनों भी स्पोर्स के ज़रिए होता है। नाउ सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट। अब उसकी हैबिटेट मतलब वो कहाँ ग्रो होता है फंजाई। तो है उसकी हैबिटेट क्या है? फंजाई ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। अभी हमने देखा कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। जहाँ भी लाइफ पॉसिबल हो फंजाई वहाँ ग्रो कर लेगा। नाउ इसकी हैबिट मतलब वो कैसा दिख रहा है अपने को, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। दैट इज सेप्रोफाइट, मतलब वो डेड, अगर वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो हो रहा है तो उससे हम सेप्रोफाइट कहेंगे। और पैरासाइट मतलब ग्रो ऑन लिविंग मैटर्स, बट जो भी लिविंग मैटर पे ग्रो कर रहे हैं ना पैरासाइट, उसको हार्म भी हार्म करेगा। और सिम्बायोन्स मतलब दोनों में सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप होगी। मतलब ये जिस भी पार्टनर के साथ रहेगा, जिसके साथ ग्रो करेगा, उसको भी बेनिफिट देगा और खुद भी बेनिफिट उससे हासिल करेगा। द बॉडी इज थैलॉइड, अभी हमने देखा इसकी बॉडी थैलॉइड होती है, ग्रोइंग ऑन और इन द सबस्ट्रेटम। ये जिस पार्ट से अटैच होती है उसको सबस्ट्रेटम कहेंगे फंजाई, क्योंकि फंजाई अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रही है तो वो किसी और से हासिल करेगी, और जिससे हासिल कर रही है उसके सपोर्ट को सबस्ट्रेटम कहेंगे। नाउ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, that can't make their own food material because they have lack of chlorophyll. सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से या फिर सेलुलोज से या फिर दोनों से बनी होती है। सेलुलोज भी कोई आम सेलुलोज नहीं, फंगल सेलुलोज होता है वो। एंड उसका जो सेलुलार स्टेटस है वो मल्टी सेलुलार होती है एक्सेप्ट ईस्ट। उसका रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, बट दोनों स्पोर्स के ज़रिए होते हैं। एंड इसका जो रिजर्व फंगल फूड है वो स्टार्च होता है या तो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ नथिंग बट द ग्लूकोज, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज थैलस? अ प्लांट बॉडी विदाउट ट्रू स्टेम और रूट्स और लीव्स और वस्कुलर सिस्टम, मतलब जिसमें ये सब चीज़ें ना हों वो कहलाएगा थैलस। इन फंजाई जो वेजिटेटिव फेज है उसका, फंगस का, उसे हम थैलस कहेंगे। मतलब उसकी बॉडी इसीलिए वेजिटेटिव फेज मीन्स उसकी नॉर्मल बॉडी। अब थैलस की कुछ टाइप्स होती है। नंबर 1 इज़ होलोकार्पिक थैलस। होलोकार्पिक थैलस मीन्स, होलो मीन्स कंप्लीट, कार्पस मतलब फ्रूट। इन होलोकार्पिक फंगस होल थैलस बिकम्स कन्वर्टेड इनटू अ रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब जो उसका थैलस है, जो उसकी फंजाई की पूरी बॉडी है, जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो वही अपने आप को रिप्रोडक्टिव रीजन में कन्वर्ट कर लेती है। उसका कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं होते, वही बॉडी वेजिटेटिव बॉडी भी रहती है। बाद में जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है वही बॉडी रिप्रोडक्टिव रीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं होलोकार्पिक थैलस। एग्जाम्पल ईस्ट। अब ये देखें ईस्ट की ये एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले ये कंप्लीट ईस्ट का सेल है, फिर इसके बाद इसमें जब रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है तो ये इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बर्डिंग हो रही है। बर्डिंग में ये छोटा सा बर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर वो बर्ड जब मैच्योर हो गया तो वो अपने पेरेंट सेल से, मदर सेल से अलग हो जाएगा और फिर अपना सेल ग्रो करेगा। इसी तरह फिशन इन ईस्ट, इसमें क्या होता है, फिशन मतलब ब्रेक डाउन। जो ईस्ट है वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगी
मतलब यही उसकी बॉडी है और यही से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। अब है यूकार्पिक थैलस। इन यूकार्पिक फंगस थैलस, जब थैलस है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव रीजन्स होते हैं, कुछ वेजिटेटिव रीजन्स होते हैं। मतलब जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो भी होता है फंगस में, और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी। और दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहते हैं। एग्जाम्पल अल्बिगो, ये एक रिप्रोडक्टिव रीजन है। अब ये हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन से वो अपनी फूड हासिल कर रहे हैं। वो एब्जॉर्प्शन कर कैसे रहे हैं? जो फंजाई गेट कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, जो सबस्ट्रेटम से वो लोग अटैच है जिससे अपनी फूड हासिल कर रहे हैं, वहाँ से वो ऑर्गेनिक सोर्स लेंगे। फिर रिलीजेस इंजाइम, मतलब जिस पार्ट से वो लोग, मतलब जहाँ से अटैच है, जो चीज़ से सबस्ट्रेटम को पकड़े हुए हैं, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिससे हाइफा कहते हैं। वो कुछ इंजाइम सिक्रेट करेगी। फिर वो इंजाइम जो है, जो प्रोडक्ट हासिल करें, जो फूड हासिल करे, उसको ब्रेक डाउन करेगी उसका, और वो प्रोडक्ट को अपने अपने हिसाब का, अपने उनको जैसा चाहिए वैसा बनाएगी और फिर उसको इनटेक कर लेगी। देन व्हाट इज़ हाइफा? अभी हमने देखा हाइफा, तो हम ये सोच रहे होंगे कि हाइफा है क्या। तो हाइफा क्या है? फिलामेंटस बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फंजाई की बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हाइफा कहते हैं। एंड जो ये हाइफा का नेटवर्क होता है, जो इसका गुच्छा होता है, इसे हम माइसेलियम कहेंगे। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फंजाई बॉडी इज़ नथिंग बट द माइसेलियम। The vegetative body of the fungi is nothing but the mycelium, and mycelium is the network of hypha. अब ये माइसेलियम की भी कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ असेप्टेड माइसेलियम, अनदर वन इज़ सेप्टेड माइसेलियम। अब और ये सेप्टा मतलब होता है, असेप्टेड मतलब उसकी अपोजिट, तो जिसमें सेप्टा ना हो। अब ये सेप्टा क्या है? सेप्टा मतलब पार्टीशन, वॉल। ऐसा माइसेलियम जिसके अंदर सेप्टा ना हो, मतलब जिसके अंदर वॉल ना हो, जो डिवाइड ना हो, पूरा कंटिन्यूअस हो, उससे हम कहेंगे असेप्टेड माइसेलियम। जैसा हमें ये फिगर में दिख रहा है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन है। इसे हम सीनोसाइटिक हाइफी भी कहेंगे, जिसको मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब इसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं। फिर उसके बाद आता है सेप्टेड माइसेलियम, ऐसा माइसेलियम जो डिवाइड हो, किसकी वजह से? कई सारे सेल वॉल की वजह से, जिससे और उससे पार्टीशन को, उस वॉल को हम कहते हैं सेप्टा। फॉर एग्जांपल ये हम फिगर में देख रहे हैं कई सारे सेप्टा में, जिसकी वजह से ये हाइपर डिवाइड हो गया है, तो इससे हम कहेंगे सेप्टेड हाइफी। अब ये सेप्टा की भी कुछ टाइप्स होती हैं। मतलब जब अगर ये सेप्टा आ गया है उसके हाइफी में, तो ये जो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाएगा कैसे, जब यहाँ पे वॉल फॉर्म हो गई है। तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ पोर्स इन द सेप्टा। वन इज सिंपल पोर, अनदर वन इज डॉली पोर सेप्टम। इन सिंपल पोर सेप्टम जो पोर्स होते हैं ना, वो एकदम सिंपल्स होते हैं, उसके नाम ही में है सिंपल। सिंपल्स तो उसके अंदर पोर होते हैं छोटे छोटे, और वहाँ से फिर वो फूड जो मटेरियल जो एब्जॉर्ब करते हैं वो पास करते हैं दूसरे सेल्स में। इन डॉलीपोर जो ये सेप्टम होता है ना, स्लाइटली स्वेल होता है, तो इसे कहेंगे हम डॉलीपोर सेप्टम। नाउ वी फिनिश द इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू ऑल।